ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول عشق معصوم ہے جس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر۔ اس کی یہ 10ویں ایپیسوڈ ہے اور آئی ایم سو سوری کہ میں آپ لوگوں کو کل ایپیسوڈ نہیں دے پائی۔ میرے لیے اس کو ریکارڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا کیونکہ میں گھر آئی ہوئی تھی اور گھر میں کنسٹرکشن وغیرہ کا کام ہو رہا اور اتنا زیادہ شور ہوتا ہے، ابھی بھی ہے، بٹ خیر میں پھر بھی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو آواز کم سے کم آئے اور میں اس ناول کو ریکارڈ کر لوں۔ اور ویسے بھی جب میں گھر آتی ہوں نا تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے ریکارڈنگ کے لیے ایک ٹائم سیٹ کرنا، سارا کام کرنا، اور پھر اب تو روزہ ہوتا ہے نا تو روزے کے ساتھ میں ریکارڈنگ نہیں کرتی ہوں۔ اگر میں کرتی ہوں تو میں افطاری کے بعد کرتی ہوں، تو زیادہ تر اسی ٹائمنگ میں کرتی ہوں، اس کے علاوہ نہیں کرتی دن میں، کیونکہ مشکل مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے پھر روزہ لگے بعد میں، تو اس لیے پھر میں نہیں کرتی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب میں اس کو ریکارڈ کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو اس کی ایپیسوڈ سناتی ہوں۔ تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ وہ گھر لوٹا تھا، تھکا تھکا سا، اداس تھا۔ انشا کو خصوصی دھیان کا کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ گھر آیا تو اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہوئے بنا ہی وہ اپنے بستر پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ سویا نہیں تھا، تبھی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اینا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا دیکھا تو وہ عالیہ کے روم کا دروازہ بند دیکھ کر ایک دم خود کو نہ روکتے ہوئے زار کے روم میں چلی گئی اور دروازہ خود لاک کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی ماں باہر نکل کر اس کو پکارے گی یا نہیں، مگر فی الحال جو اہم تھا وہ وہاں تھی۔ زار نے سر اٹھا کر دیکھا، اینا تھی۔ اس نے دوبارہ سر گرا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اینا اس کے نزدیک آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ ڈر رہی تھی، اسے لگا تھا وہ ابھی اس کو بے عزت کر کے نکال دے گا، مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ پاس بیٹھ کے اس کا سر دبانے لگی۔ زار کو نرم ہاتھوں اور انگلیوں کی آہستہ آہستہ سہمی حرکت بہت اچھی لگی تھی، مگر تا دیر نہیں، بس ایک لمحہ ہی لگا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اینا کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ دی۔ وہ میں آؤٹ، وہ بولا۔ زار میں اینا نے کچھ کہنا چاہا۔ تم یہ چاہتی ہو میں تمہاری ماں کے پاس لے جاؤں تمہیں؟ اینا نے اچانک خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ان نظروں میں آنسو تھے، شرمندگی تھی۔ میری وجہ سے ہوا سب زار، وہ بولی اور رونے لگی۔ آواز ہلکی تھی۔ اسٹاپ دس ڈرامہ اینڈ گیٹ آؤٹ، وہ قدرے بلند آواز میں بولا۔ وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ آؤٹ، اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا اور اینا نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی سے نکل گئی۔ یہ تو شکر ہے کہ اس کی ماں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے روم میں آ کر رونے لگی تھی۔ وہ تو اس کی ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ فکر مند تھی وہ۔ حیا کی ماں کی طبیعت کافی خراب تھی، تبھی اس نے نتاشا کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ نکاح کرا دے۔ نتاشا نے بھی حامی بھر لی کہ وہ صدام سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ میں رات تک صدام کو منا لوں گی، اس نے کہا، اور وہ صدام کا ویٹ کرنے لگی۔ اسے آتے دیر ہو گئی تھی۔ تبھی نتاشا سو گئی، مگر اس کی آہٹ پاتے ہی اٹھ گئی، اس کو کھانا دیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم نے کیا سوچا؟ کس بارے میں؟ نکاح کے بارے میں، نتاشا نے اس کی جانب دیکھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو نتاشا، مجھے نہیں کرنا کسی سے نکاح، میں خوش ہوں تمہارے ساتھ۔ مگر میں خوش نہیں ہوں، میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں بنا اولاد کے لیے شادی کر لو، اور جب میں کہہ رہی ہوں، میں خود اجازت دے رہی ہوں، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے یار؟ وہ چڑھ کر بولی۔ کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوگی کہ تم کسی اور لڑکی سے اپنا شوہر بانٹو؟ نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ صدام اس کی شکل دیکھنے لگا۔ میرا مطلب نہیں ہوگی، جب میں جانتی ہوں کہ تم یہ سب نہیں کرنا چاہتے تھے اور میرے کہنے پر کر رہے ہو، اس کے نزدیک آ کر پیار سے بولی۔ نتاشا، تم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہو، خود، صدام نے گویا وارن کیا۔ میں کچھ نہیں کر رہی، بس اچھا سوچو اور یہ سوچو کہ ہماری اولاد ہوگی۔ اس نے صدام کے نزدیک ہو کر اسے اپنے جال میں پھنسانا شروع کر دیا۔ صدام کو پہلی بار اس کی قربت کی چاہت نہیں تھی۔ اس نے کوئی پیش قدمی نہیں کی، وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اب ایسے مت دیکھو، حیا کافی خوبصورت ہے، نتاشا نے اسے چھیڑا۔ صدام کو ایک آنکھ نہ بھائی تھی یہ بات کہ اس کی بیوی اسے چھیڑ رہی ہے، وہ بھی کسی اور لڑکی کے لیے۔ وہ جانتا تھا حیا سے شادی کے بعد شاید بہت کچھ بدل جائے۔ وہ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتا تھا جو اس نے نتاشا کے ساتھ باندھا تھا، مگر نتاشا خود ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ مجھے سوچنے کا وقت دو، وہ کہہ کر اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا ٹیرس پر، جبکہ نتاشا نے سر جھٹکا اور اس کے کھائے ہوئے برتن اٹھانے لگی۔ میں کوئی تمہاری غلامی کے لیے ہوں صدام؟ یہ برتن بھی مجھے خود ہی اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ زار سے شادی کرنے کے لیے
کر کے عیاشی کروں گی میں تو، پیسہ ہی پیسہ ہوگا میرے پاس، اور رہے بچے تو کچھ عرصے بعد اڈاپٹ کر لیں گے، شاید تم سے ہی۔ وہ ہنس پڑی اور پرسکون ہو کر لیٹ گئی، جبکہ صدام گہری سوچ میں تھا کہ حیا کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اسے مل رہا تھا۔ وہ سوچے جا رہا تھا اور تا دیر سوچنے کے بعد وہ خود بھی خاموش ہو گیا۔ شاید جو وقت چال چلتا تھا اس کے ساتھ چلنا زیادہ مناسب تھا۔ اگلے روز صدام کی حامی بھرنے کے بعد نتاشا بے حد خوش تھی۔ اس نے ان دونوں کا جلد از جلد نکاح کرانے کا سوچ لیا تھا۔ دوسری طرف حیا کی ماں کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اسی افراتفری میں دوپہر میں ان دونوں کے نکاح کی رسم کی ادائیگی ہو گئی۔ صدام کے مزاج کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ حیا نے اس کی جانب دیکھا اور وہ اٹھ کر چلا گیا، جبکہ نتاشا کو سکون ملا کہ صدام حیا کو منہ لگانے کو تیار نہیں۔ وہ بے ہنگم سا ہنسی۔ ہاں جی، میں تو کہتی ہوں دونوں کی رخصتی کر دیتے ہیں، باقی اللہ بعد میں ہوتا رہے گا، نتاشا نے کہا تو گویا حیا اس کی اتنی عجلت پر حیران تھی۔ بیٹا، میرے پاس دن ہی کتنے ہیں، میری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے، اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ وہ بولی تو نتاشا نے ہنس کر حیا کو ریڈی ہونے کا کہا۔ میں نے نہیں ہونا تیار، ایسے ہی ٹھیک ہوں، حیا سر جھکا کر بولی۔ ارے پاگل ہو، تمہاری تو پہلی شادی ہے بے وقوف، اس نے حیا کو سمجھایا اور زبردستی اپنا قیمتی نیا بلیک کامدار جوڑا اسے پہنا کر وہ اسے ہلکا ہلکا تیار کر چکی تھی۔ حیا ایک دم نکھر سی گئی۔ نکاح کا روپ ہی الگ آیا تھا کہ نتاشا خود بھی ذرا جیلسی کا شکار ہو گئی۔ پھر اس پر شرم آیا اور انداز میں سنجیدگی، بال باندھ لو، وہ ذرا چڑھ کر بولی۔ حیا نے اس کی جانب دیکھا اور بال باندھ لیے۔ نتاشا کو کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا جی آنٹی، چلتی ہوں آپ کی بیٹی لے کر، وہ آنٹی سے بولی۔ حیا اپنی ماں سے ملی، اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میں کچھ دیر تک آپ کے پاس آتی ہوں۔ اب نہیں آنا جانا، اب اپنے شوہر پر توجہ دو۔ نتاشا پھر سے ہنسی۔ حیا کو اس کی ہنسی بری لگ رہی تھی۔ اسے اینا کی بھی یاد آ رہی تھی۔ اینا کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا ہوگا، اس کی وجہ سے اینا پھنس گئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گھر سے باہر نکل آئی اور آج جس شان سے وہ آنا چاہتی تھی، صدام کی دوسری بیوی بن کر وہ اس گھر میں آئی تھی۔ محلے میں یہ بات پھیل گئی تھی۔ وہ جب گھر میں آئے تو نتاشا سنجیدہ تھی۔ اس نے صدام کو پکارا مگر صدام گھر میں موجود نہیں تھا۔ نتاشا کے کلیجے میں عجیب سی ٹھنڈ پڑ گئی۔ در حقیقت مجھ سے محبت بہت کرتے ہیں، شاید تمہیں ایکسیپٹ نہ کر سکے، مگر فکر مت کرو، میں ان سے کہوں گی، وہ تم پر توجہ دیں گے، وہ بولی تو حیا کے گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا۔ اسے لگا تھا شاید وہ اب اس کی طرف آ جائے، مگر وہ تو اب بھی اس سے نفرت کرتا تھا۔ میں امی کے پاس چلی جاتی ہوں، حیا بولی۔ ارے کیوں، اب اس گھر میں رہو، میں ذرا جا رہی ہوں اپنے ساس کے گھر، تم یہاں رہو، اپنے شوہر کے لیے کھانا وانا پکاؤ، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ حیا اس خالی گھر کو دیکھنے لگی جس میں وہ آج شادی کر کے آئی تھی۔ اس کی سسکی بن گئی تھی صدام کی اس بے عزتی پر۔ انشا نے افین کو کھانا دینے کے لیے باؤل میں سوپ نکالا تو وہ سوپ کی سرخی اور اس پر چکنائی دیکھ کر ایک دم دانت پیس گئے۔ سکینہ کو انہوں نے بالکل لائٹ فوڈ بنانے کا کہا تھا، پھر اس نے یہ ایسا کیوں بنایا؟ انہوں نے بھڑکتے ہوئے گھر کال کی اور قسمت سے لینڈ لائن کا نمبر سکینہ نے اٹھایا۔ یہ تم نے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ چکنائی اور مرچوں کی بھرمار، جو مجھ سے نہیں کھایا جا رہا وہ افین کھائے گی؟ انشا چیخے۔ صاحب جی، میں نے تو بالکل باجی کی طبیعت کے حساب سے کھانا بنایا تھا جی، میرے بچوں کی قسم، میں کیوں ایسے بناؤں گی؟ سکینہ اپنی صفائی دینے لگی۔ انشا اس پر کافی غصہ کر کے فون بند کر چکے تھے۔ انہوں نے باہر سے فوڈ آرڈر کر دیا اور اچانک ڈبے بند کرتے ہوئے انہیں جیسے کچھ یاد آیا کہ انہوں نے صبح عالیہ کو کہا تھا کہ وہ کھانا اٹھا کر دے، تو اگر سکینہ نے یہ نہیں کیا تو کیا عالیہ نے؟ وہ پرسوچ سے ہوئے، مگر وہ ایسے کیوں کرے گی؟ ان کی سوچیں منتشر سی ہوئی اور سر جھٹک گیا، جبکہ دوسری طرف افین گہری نیند میں تھی اور اچھا تھا کہ وہ جتنا سوتی اتنا جلد بہتر ہو جاتی۔ زار تا دیر سوتا رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر رف سے حلیے میں باہر نکلا تو سامنے سے عالیہ آ رہی تھی۔ اس کا منہ ہی بن گیا۔ اس نے رخ موڑ لیا، اگر اسے تا دیر منہ موڑنا نہیں پڑا، کیونکہ عالیہ کے پیچھے ان کا مینیجر تھا آفس کا۔ وہ اسد کو حیرانگی سے دیکھنے لگا، جو عالیہ کے پیچھے فائلز پکڑے چلتا آ رہا تھا، اور عالیہ شان سے صوفے پر بیٹھ گئی تو اسد سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ زار سنجیدگی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ عالیہ کو اس وقت بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ آج وہ آفس چلی گئی تھی۔ زار اور انشا دونوں ہی نہیں گئے تھے۔ اسے سمجھ تو کچھ خاص نہیں آیا تھا، مگر سمجھا تو جا سکتا تھا کہ تبھی اس نے وہاں کے مینیجر کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ وہ مینیجر زار اور انس کا وفادار تھا کافی، اب تک اسے کوئی بات بتائی نہیں تھی۔ زار نے گہرا سانس بھرا۔ اسد، وہ بلند آواز میں بولا۔ اسد جس کی جان پر بن رہی تھی وہ پلٹا۔
यस सर। उसकी आवाज़ सुनकर ऐना भी बाहर आ चुकी थी। यहाँ क्या कर रहे हो? जब मैं और डैड ऑफिस में नहीं हैं तो ऑफिस को चौकीदार के हवाले करके आए हो? वो सख्ती से पूछ रहा था। आई एम सॉरी सर, मगर मिसेज़ अंश के मुझे ज़बरदस्ती फोर्स करके अपने साथ आने पर मजबूर कर दिया है। मैं इनकार नहीं कर सका। मिस्टर असद, आपके बॉस मैं और डैड हैं, इसके अलावा कोई नहीं, और मेरा ये ऑर्डर है कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं, और आइंदा किसी भी फालतू शख्स के कहने पर आप इस जगह से हिले तो मुझे इल्म है कि आपसे बेहतर ग्रेड्स पर दुनिया में मौजूद हैं। वो खुश्क लहजे में बोलता असद की सीटी गुम कर गया। आई एम सॉरी अगेन सर, असद कहने लगा और जल्दी से वो बाहर निकल गया। ये फाइल्स मेरे पास रखते, ज़ार बोला, और असद ने उसके हुक्म के मुताबिक फाइल्स रख दी और वहाँ से जल्दी से निकल गया। शुक्र अदा करता कि उसकी जान बच गई थी। आलिया का चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो दंदनाती हुई ज़ार के सर पर पहुँच गई जो सकीना का दिया हुआ खाना खा रहा था। तुम होते कौन हो ये सब करने वाले? मेरे शौहर का भी बिजनेस है ये, और मैं हक रखती हूँ मालूमात हासिल करने की। अकाउंट्स की? उसने तंज करते हुए फाइल फेंक दी जो आलिया के पाँव में जा गिरी। वो एकदम सरपटा गई। ज़ार ने मज़ीद कोई बात नहीं की। वो फिर से खाने लगा। हाँ हाँ, तो इसमें क्या है? मैं जिस मर्ज़ी चीज़ की मालूमात हासिल करूँ, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? ज़्यादा मेरा सर खाने की ज़रूरत नहीं। ये बिज़नेस, ये घर और यहाँ की एक एक चीज़ सिर्फ ज़ार अंशाह की है, ना कि तुम्हारी। समझ में आई? और तुम्हें मैं यहाँ रख लेता हूँ तो एहसान मंद ही रहना। वो नफरत से बोला। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें और तुम्हारी माँ को एक लम्हे में? वो एकदम उंगली उठा गया। आलिया को गुज़श्ता थप्पड़ याद आया और उन दोनों के बीच भागकर ऐना हाइल हो गई। मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज़ नहीं निकालना, वरना तुम्हें और तुम्हारी इस बेटी को आग लगा दूंगा, ये याद रखना। वो बिना लिहाज के एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला, जबकि ऐना माँ को पीछे करने लगी। मम्मा मम्मा, आप क्यों कर रही हैं ऐसा? ज़रा लगाओ तो सही आग में भी, देखो कितनी जुर्रत है तुम में। वो भी भड़क कर बोली। ज़ार तंजिया मुस्कुरा दिया, जैसे अपनी करती याद दिला रहा हो कि कैसे थप्पड़ बरसाए थे उसने उसके मुंह पर। ऐना ज़बरदस्ती माँ को खींचती हुई कमरे तक ले गई। आने दो अंश को, बताऊंगी मैं कि ये लड़का मुझे हरासा कर रहा है। माँ, ऐना ने उसको कमरे में धकेल कर उसके आगे हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ बस कर दे, क्या कर रही हैं? अरे हटो, तुम ये समझता क्या है खुद को? मैं इसके टुकड़े कर दूंगी और इसकी माँ के भी। वो चीखी, मगर ऐना ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ये सारा तमाशा नताशा जो बाहर से आ रही थी देख चुकी थी। ज़ार लापरवाही से सारी फाइल्स समेट कर हाथ में लिए वहाँ से जाने लगा। अस्सलाम वालेकुम। नताशा जल्दी से उसके सामने आ गई। ज़ार ने ज़रा बेजारियत से उसको देखा। दूसरी तरफ आलिया भी ऐना को बाहर निकाल चुकी थी कि वो उसे अंशाह को फ़ोन करने से रोक रही थी, तभी उसने उसे निकाल दिया। वो सामने नताशा और ज़ार को देखने लगी। हैरानगी ही हैरानगी थी। कैसे हैं आप? नताशा मुस्कुराकर बोली। ज़ार बिना जवाब दिए गुजरने लगा। आप इतना खफा क्यों रहते हैं? नताशा ने फिर से उसके सामने आ गई। ऐना को पहली बार ज़िंदगी में इतना गुस्सा आया था। वो देख रही थी ज़ार की बेजारियत। वो उन दोनों के नज़दीक आ गई। भाभी, उसने नताशा को पुकारा। नताशा ने ऐना की तरफ देखा और ज़ार ने भी। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, बात कर रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? नताशा बिगड़ कर बोली। भाभी, ऐना शॉक्ड सी रह गई। जाओ तुम यहाँ से, उसने कहा, जबकि ज़ार वहाँ से खुद ही चला गया। वो मज़ीद यहाँ खड़ा नहीं होना चाहता था। नताशा उसे रोकना चाहती थी, मगर ज़ार ने दोनों के मुंह पर दरवाज़ा खींच कर बंद कर दिया। क्या मसला है तुम्हारे साथ, है ना? नताशा उस पर चीखी। आप ये क्या हरकतें कर रही हैं भाभी, भाई के होते हुए? पसंद करती हूँ मैं ज़ार को, और तुम्हारे भाई के लिए वैसे भी। अब हेया आ गई है, अभी दोपहर में ही दोनों का निकाह हुआ है। अब मेरे रास्ते के बीच में मत आना। उसने ऐना को धकेला और उस कमरे में चली गई जहाँ वो पहले से रह रही थी। ऐना मुंह पर हाथ रख के ज़मीन पर बैठती चली गई। अफ़ीन की तबीयत अब बेहतर होती जा रही थी। घर में अंशा की तवज्जो बढ़ चुकी थी। अफ़ीन के ज़िद करने पर डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया था और ज़ार और अंशा उसे 4 दिन के बाद घर ले आए थे। आलिया अंशा से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी क्योंकि उन्होंने उसकी इतने दिन बिल्कुल केयर नहीं की। तभी वो भड़की हुई थी और वो अफ़ीन से मिलने भी नहीं आई थी। जबकि ऐना दरवाज़ा नॉक करके आई, तब अंशा और ज़ार और अफ़ीन ही कमरे में मौजूद थे। वो झिझकती हुई अंदर आ गई। तीनों ने उसकी तरफ देखा। आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? वो सर झुकाए पूछ रही थी। ज़ार, अफ़ीन ने ज़ार की जानिब देखा।
ज़ार आंखों से नफ़ी कर रहा था कि वो उसे ऐसा कुछ न कहे जो वो ना कर पाए। अपने बाप को बताओ जो कुछ तुम कर चुके हो, अफरीन ने सीधी तरह कहा। मम्मा, ज़ार ने ज़रा ज़ब्त से उनकी जानिब देखा। जो तुम कर चुके हो तो उसे छुपा क्यों रहे हो? अफरीन संजीदगी से बोली। क्या हुआ है? अंशा ने ज़ार की तरफ देखा। कुछ नहीं, ज़ार कहकर बाहर निकलने लगा। आपका बेटा निकाह कर चुका है, अफरीन एकदम बोली, जबकि ज़ार के कदम जकड़ लिए। मैं इस निकाह को नहीं मानता और ना ही मैं किसी बात को तस्लीम करता हूँ, ज़ार भड़क कर बोला। अंशा शौक से उसे देखने लगे। बाहर कमरे से निकलती आलिया ने ऐना को अफीन के कमरे में देखा तो वो वहाँ आ गई। इससे पहले वो ऐना से पूछती कि वो यहाँ क्यों है, अफीन की बात पर वो भी हैरानगी से थम गई। ऐना पत्ते की तरह कांपने लगी थी कि आज उन दोनों का सच खुल जाएगा। ज़ार ने माँ की जानिब देखा, जबकि अंशा ने ज़ार की तरफ। ऐना की आंखें आंसुओं से तरती। ज़ार जिद चो रहा था, उसे डर नहीं लगता था किसी से, मगर वो क्यों उससे अपनी बीवी कबूल करता? शायद वो अब भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और अफीन भी जिद बांध चुकी थी। किससे किया है तुमने निकाह? अंशा ने उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा, जबकि ज़ार के सांस गुस्से की शिद्दत से फूलने लगे। अगर ये ऐना ये सब ना करती तो ये राज आज यूं ना खुलता। अपने मुंह से एतराफ़ करना उस वक्त उसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। वो अपने पाँव में मौजूद नोकदार स्याह जूते को घूरता रहा। मैं पूछ रहा हूँ, किससे निकाह किया है तुमने और कब किया ये सब? क्या माही तुम्हारे निकाह में है? अंशा ने अंदाज़ा लगाया। ज़ार फिर भी कुछ नहीं बोला। आलिया मुस्कुरा दी। बहुत इज्जतदार बनता था और ख़ुद क्या किया था? वो मज़े से खड़ी सुन रही थी, मगर उसकी तवज्जो अपनी बेटी की जानिब बिल्कुल नहीं थी। ज़ार जवाब दो, क्या किया है तुमने? अंशा की बस हो चुकी थी, तभी उसे झंझोड़ कर बोले, मगर ज़ार अब भी कुछ नहीं बोला। तभी उन्होंने अफीन की जानिब देखा। अफीन की आंखों में नमी थी, मगर वो यहाँ अपने बेटे को रियायत देना नहीं चाहती थी। उसने गहरा सांस भरा। ज़ार मुठियाँ भींचता खड़ा था। आपकी दूसरी बीवी की बेटी से चंद माह पहले निकाह कर चुका है आपका बेटा, अफीन ने ठहरे हुए लहजे में बताया। ज़ार का खड़ा होना वहाँ मुश्किल हो रहा था। वो भड़कता हुआ वहाँ से निकल गया, जबकि ऐना ने पलटकर माँ की तरफ देखा, जो शॉक्ड खड़ी थी, गोया उसे यकीन ना आया हो। क्या? अंशा भी ऐना को देखने लगा। हाँ, अफीन ने कहा और उन तीनों की जानिब से नज़र हटा ली और आंखें बंद कर ली। वो जानती थी कि उनका बेटा इस बात को खोलना नहीं चाहता, तो क्या उसके जुर्म में वो भी शामिल हो जाती? हाँ, ऐना को बहू तस्लीम करना बिल्कुल वैसा ही था जैसे आलिया को तस्लीम करना है, मगर वो कर गई थी। और ज़ार क्या कर रहा है? ये आगे जाकर क्या कुछ करता है, इस बात को खुल जाना ही बेहतर था। अगर उसमें इतनी जुर्रत थी कि वो निकाह करके छुपा सकता था तो सबके सामने खड़ा भी हो सकता था। तभी उन्होंने उस राज को मज़ीद राज रहने नहीं दिया। वो आंखें बंद कर गई। आलिया ऐना की जानिब कदम उठाती उसके सर पर खड़ी हो गई। क्या ये सच है? उसने जिस तरह पूछा, ऐना का खून खुश्क हो गया। ऐना, मैं पूछती हूँ, क्या ये सच है? वो चिल्लाई और खींच कर ऐना के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। ऐना दूर जा गिरी और सर असबात में हिलाने लगी। तुमने उससे निकाह कर लिया? उससे? वो उसको दोनों बाजुओं से जकड़े चिल्लाने लगी। अंश खामोश खड़े थे। और तुमने इतना अरसा मुझसे ये निकाह छुपाए रखा? तुम्हें इतनी जुर्रत कैसे आई, बताओ मुझे। उसने ज़बरदस्ती तुमसे निकाह किया था, है ना? है ना? देखो मेरी तरफ। वो चीखी और उसका मुंह अपनी जानिब कर लिया। अंशा भी शायद इस सवाल का जवाब चाहते थे। अफीन तो पीछे की तमाम कहानी से वाकिफ़ थी। मैं वो उसने तुमसे निकाह ज़बरदस्ती किया है ना? आलिया हर लफ्ज़ पर ऐसे दबाव दे रही थी जैसे चाहती हो वो इस बात का इकरार करेगा। हाँ, ये निकाह ज़बरदस्ती था तो वो अच्छे से ज़ार को मज़ा चखाए। मम्मा, ऐना कुछ कहना चाहती थी, मगर आलिया ने उसकी कलाई मोड़ दी। ये निकाह ज़बरदस्ती हुआ है, वो ज़ोर देकर बोली। आंखें निकालकर ऐना से एतराफ़ करने लगी। ऐना ने भीगी नज़रों से माँ की तरफ देखा, जो इस वक्त उसकी माँ नहीं लग रही थी, शायद एक दीवानी औरत लग रही थी, जो किसी सूरत इस बात को मानने के लिए तैयार ना हो कि ऐना ज़ार को पसंद करती है। उसने मज़ीद कलाई मोड़ी तो ऐना कराहती हुई हाँ में गर्दन ला गई। हाँ, ज़बरदस्ती किया था मुझसे, वो बोली। अफीन जो आंखें बंद किए सुन रही थी, आंखें खोलकर ऐना को देखने लगी। ऐना का चेहरा शर्मिंदगी और दर्द की कैफियत की वजह से सुर्ख हो गया। क्या उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी वो एतराफ़ कर सकती अपनी मोहब्बत का? आलिया ने ऐना को धकेला और अंश को देखा। आपके बेटे ने मेरे बेटी को ज़बरदस्ती हरासा किया है, मैं इस पर केस करूँगी, वो चीखी। अफीन कुछ नहीं बोली थी। ऐना सर झुकाए रोने लगी। मैं उससे बात करता हूँ, अंशा ने बस इतना ही कहा। बात करेंगे आप उससे?
क्या कुछ किया होगा उसने मेरी बेचारी बेटी के साथ? आपका बेटा बल्कि उसकी माँ समझते क्या है खुद को? मेरा जीना हराम कर रखा है, मेरी बेटी का भी कर दिया। उससे कहिए तलाक दे, वरना ऐसा केस बनाऊंगी सालों बाहर नहीं निकलेगा। आलिया अफीन को घूरते हुए बोली। अफीन अब भी चुप रही थी। अंश, आप दोनों की रुखसती करा दे, वो कुछ तवक्कुफ से बोली। ऐना ने अफीन की जानिब देखा। वाह वाह, मेहरबानी, तुम्हारा बेटा इस काबिल है कि मैं अपनी बेटी दूं, उससे मेरी बेटी की मंगनी हुई है, समझी तुम? और मैं तुम्हारे बेटे से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं होने दूंगी। वो गुस्से से चिल्लाई। अफीन उसने ज़बरदस्ती किया ना पर। अंश ने तहम्मुल से अफीन की तरफ देखा। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। मगर मैं यहाँ किसी की किरदार कशी नहीं कर रही। बेटियाँ सबकी सांझी हैं। मेरी बेटी नहीं तो मैं अपने बेटे की सरकत पर उसे कोई शाबाशी नहीं दे रही, मगर शायद भलाई इसी में है कि दोनों की रुखसती कर दी जाए। बस चुप करो तुम, आलिया ने भड़क कर हाथ बुलंद किया। मेरी बेटी का किरदार साफ सुथरा है, वो बेचारी मासूम, उसे क्या इल्म इस बकवास का जो तुम्हारा बेटा कर चुका है। अपने बेटे की हमायत के लिए मेरी बेटी को उसके सामने न डालो, समझी तुम? और मैं राजी नहीं हूँ, दुनिया में ज़ार आखिरी लड़का भी हुआ तब भी अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूंगी। बेहतर होगा इससे कि कहीं शराफत से तलाक दे, वरना अच्छा नहीं करूंगी उसके साथ। वो खुलेआम कहकर ऐना को घसीटती हुई वहाँ से ले गई, जबकि अंशा सर थाम गए। कब पता चला है तुम्हें? उन्होंने अफीन को देखा। आपकी बीवी की बेचारी बेटी ने ही बताया है। आप ज़ार को जानते हैं, फैसला वो लीजिएगा जिससे कोई मसाइल पैदा ना हो, उसने नकाहत से कहा। ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं संभाल लूँगा सब। अफीन की तबीयत की वजह से वो ज़रा फिक्रमंद दिखाई दिए। रिलैक्स? वो हंसी। आप दोनों ने मुझे दुनिया जहान की खुशियाँ देखकर रिलैक्स कर दिया है, वो आहिस्ती से बोली। अंशा कुछ कह नहीं पाए और वहाँ से निकल गए, जबकि दूसरी तरफ ऐना को घसीट कर आलिया उसके कमरे में ले गई और उसे कमरे के वस्त में फेंका और एकदम उस पर झपटी। क्या ड्रामा है ये? कब हुआ है ये? कितनी बार उसने तुम्हें छुआ? कब कब तन्हाई में रंगरलियाँ बनाई हैं तुमने? वो धाड़ी हुई, उसको मार रही थी। ऐना मुसलसल रो रही थी। उसने अपना चेहरा छुपाना चाहा, मगर आलिया ने उसके बाल खींचकर मुंह ऊपर किया और लगातार कहीं थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिए। बता मुझे, वह चिल्लाई। मम्मा छोड़ दे मुझे, मैं पसंद। ऐना, आलिया ने उसका मुंह ही जकड़ लिया। मुंह से भी ना निकालना ये बात, वरना तुम्हारी जुबान गुद्दी से खींच दूंगी, वो चिल्लाई। मम्मा चुप, बिल्कुल चुप, मुझे तुम्हारे टेस्ट कराने हैं, चलो मेरे साथ। छोड़ दे मुझे, वो उसे अपना आप छुड़ाने लगी। मुझे यकीन नहीं उस आदमी पर, मुझे नीचा दिखाने के लिए उसने तुमसे निकाह किया। आह, वो समझता क्या है, मैं हार जाऊंगी, मैं चीर कर रख दूंगी है ना तुम्हें, मगर तुम्हारी रुखसती जार के साथ नहीं होने दूंगी। मर जाओ है ना, मगर जार का नाम भी मत लेना, वो धाड़ी। मैं पसंद। आलिया ने दोबारा उस पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए, जबकि ऐना भी रोती रही। आप कुछ भी कर लें, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो उससे भी मार दूंगी, वो आंखें निकाल कर बोली। ऐना फिर से रोने लगी। मम्मा, मम्मा प्लीज़ ऐसे मत करें मेरे साथ। ऐना ने अपनी माँ के पाँव जकड़ लिए। फिलहाल तो मैं अंत से निपट लूँ, फिर तुम्हें डॉक्टर पर ले जाकर तुम्हारे टेस्ट कराऊंगी, और अगर मुझे कुछ देखा उन टेस्ट में, ऐना जान से मार दूंगी तुम्हें मैं। और उसे धकेलकर चिल्लाती रोती सी सकती ऐना को वहीं फेंक कर रूम लॉक करके बाहर निकली। नताशा सुन सी खड़ी थी। जैसी माँ वैसी बेटी, नताशा ने भड़क कर कहा। किस्मत से बहू भी वैसी ही मिली है मुझे, आलिया ने भी फौरन कहा और कमरे में चली गई जहाँ सर थामे बैठे थे। इसके बाद बस पूरे घर में आलिया के चिल्लाने की आवाज़ गूंज रही थी। सदाम घर में दाखिल हुआ तो पूरा घर सन्नाटे मार रहा था। उसने आदत के मुताबिक नताशा को आवाज़ लगाई, मगर नताशा नहीं थी। अलबत्ता किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। उसने किचन में झांका, हया थी, बिना दुपट्टे के खड़ी कुछ खाना बना रही थी। शायद उससे अंदाज़ा नहीं हुआ कि बाहर कोई आ गया। उसे यूँ अपने घर में काम करते देख सदाम को अजीब सा लगा। वो कुछ देर उसके लंबे बालों की चुटिया देखता रहा और फिर उसने किचन का दरवाज़ा बजा दिया और हनकारा भरा। हिया एकदम घबरा कर पलटी, सदाम को देखा तो दुपट्टे का ख्याल आया और उसने जल्दी से स्टैंड पर से दुपट्टा खींचकर सर पर ले लिया। नताशा कहाँ है? सदाम ने संजीदगी से पूछा। आंटी के घर गई हैं, उसने भी संजीदगी से जवाब दिया। न जाने क्यों उसके लहजे से आंखें भीग रही थी। इतनी नफरत थी उसे उससे कि वो इतना रूड हो रहा था। तुम्हें अकेला छोड़कर? सदाम को हैरानगी हुई। हिया कुछ नहीं बोली। ऐना वापस नहीं आई? उसने सवाल किया तो हिया ने सर नफ़ी में हिला दिया। क्या वो इस बात से वाकफियत? उसने पूछा तो हिया ने
सर हिला दिया। ठीक है कह कर वो वहाँ से हटकर कमरे में चला गया। हिया ने अपने आंसू साफ किया और खुद खाने को देखने लगी। खाना तैयार ही था, न जाने वो खाएगा भी या नहीं। उसने कुछ देर किचन में ही यही सोचते गुजार दिया और इतनी ही देर में सदाम फ्रेश होकर बाहर आ गया। वो सफ़ेद सूट में था, न जाने आज ज़्यादा हैंडसम लग रहा था या वो था ही। हिया ने निगाह फेर ली। सदाम बाहर रखी चेयर्स पर बैठ गया। अगर खाना बन गया है तो दे दो, वो बोला तो हिया ने सर हिलाया और जल्दी से खाना निकाल कर उसके सामने रखने लगी। हिया के हाथ के खाने वो अक्सर खाता था, तभी उसने बिना उसकी तरफ देखे खाना शुरू कर दिया। मगर वो खाने में इतना मशगूल हो गया कि उसने देखा नहीं कि हिया किचन में ठहर गई। कुछ ही देर बाद उसने हिया को पुकारा। हिया की धड़कनें अजीब बेतरतीबी से धड़कने लगी। जी, वो वहीं से बोली। तुमने खाना नहीं खाना? वो पूछने लगा। क्या आप कबूल कर लेंगे मेरा अपने साथ खाना? वो बोली। सदाम ने उसकी तरफ देखा। जब निकाह में कबूल कर लिया है तो यहाँ क्या दिक्कत है? वो बोला। हर जगह ज़बरदस्ती से काम नहीं लिया जाता। निकाह ज़बरदस्ती हो गया है तो ज़रूरी नहीं बाकी सब में भी आपकी रज़ा शामिल हो। हिया उसके सामने बैठ गई। सदाम उसकी जानिब देखने लगा। वो आंख नहीं उठा रही थी। तुम मेरी बीवी हो, मुझे इतना इल्म है, बाकी मैंने कुछ नहीं सोचा, उसने भी जवाब दिया और चुप हो गया। हिया खामोशी से खाना खाने लगी। सदाम ने खा लिया तो हाथ रोक लिया। हिया ने भी रोक लिया। क्या आपको और नहीं खाना? वो बेसाख्ता पूछ बैठी। नहीं, सदाम ने गहरा सांस भरा। क्या ये अच्छा नहीं बना? वो फिक्रमंदी से बोली। तुम कुकिंग बुरी नहीं करती, उसने कहा। हिया ने उसकी जानिब देखा और निगाह फेर ली। भला ये तारीफ का कौन सा तरीका था? वो चुप हो गई। तुमने नहीं खाना? वो उसे देखने लगा जिसने 2 लुकमे ही लिए थे। मुझे भूख नहीं थी, हिया बोली। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, खाना खाओ, सदाम ने ज़रा रोबदार लहजे में कहा तो हिया चुप हो गई और खाने लगी। सदाम उसे देखता रहा। अच्छी लग रही थी वो। उसके सामने बैठी, आम से जोड़े में, चमकते रंग में, सर पर दुपट्टा रख के छोटे छोटे लुकमे लेती। हाँ, वो अच्छी लग रही थी और सदाम को खौफ इसी बात का था कि कहीं वो उसे पसंद ना करने लगे और यहाँ से वो खुद को मजबूर महसूस करने लगा था। पहले वो खुद को डपट देता था ये सोच करके उसका कोई हक नहीं कि वो उसकी जानी माइल हो, जब उसने उसे इनकार कर दिया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो माइल होने लगा था और नताशा के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाना भी वो इसीलिए चाहता था कि उसके दिमाग से हिया का ख्याल निकल जाए। मगर किस्मत ने उनका साथ लिखा था और शायद यूं ही लिखा था। वो उसे कबूल कर चुका था और अब उसके साथ रहना भी चाहता था। बेसाख्ता हिया ने भी उसकी तरफ देखा तो सदाम ने निगाहें फेर ली। हिया का दिल टूट सा गया। उसने बर्तन समेटने खाना किचन में ढाम कर रख कर वो बाहर आई। सदाम चेयर पर यूं ही बैठा था और आसमान को देख रहा था। हिया का दिल हर गुजरते लम्हे में धड़क रहा था। मैं चलती हूँ, उसने कहा। सदाम ने उसकी तरफ देखा। कहाँ? अपने घर, अम्मी अकेली हैं, वो बोली। तो चलो दोनों वहीं चल लेते हैं। आप क्यों? उसको उठता देखकर हिया घबरा कर बोली। अगर तुम मेरे घर में रुक रही तो मैं तुम्हारे घर चल लेता हूँ, वो शाने अचका कर बोला। और वो किस लिए? आप अपने घर रहिए, हिया ने कहा और अपनी धड़कनों को संभालती वहाँ से जाने लगी। मगर सदाम के हाथ में उसकी कलाई आ गई। ये पहला लम्स था। हिया ने ज़ोर से आंखें मीच ली। थूक निकला और उसकी तरफ देखा, मगर वो देख नहीं पाई। सदाम ने मज़ीद कुछ नहीं कहा और उसका हाथ थामकर वो वहाँ से बाहर निकला। हिया की आंखें भीग गई। हाँ, ये एक ख्वाब ही तो था कि वो उसके साथ होता, उसका हाथ थामता। वो दोनों हिया के घर में दाखिल हुए, मगर आंटी सो रही थी। हिया की घबराहट और बढ़ने लगी। सदाम वहीं खड़ा हो गया। हिया क्या उसे अपने कमरे में बुलाती या ये सब बहुत मुश्किल था? शायद प्यार करना मुश्किल नहीं था उसके लिए। आज उसे ऐना की पतली हुई होती हालत का एहसास बखूबी हुआ था। उसने सदाम को अपने रूम में बुला लिया। हमारे घर एसी नहीं, वो उसकी पेशानी पर पसीना देखकर बोली। बेहतर था आंटी को भी वहीं ले आती, ऐना के रूम में आराम से सो जाती। वो शायद उस माहौल से बेजार लगा। आप चले जाइए, आराम से सो जाइए, हिया बोली। सदाम ने उसकी तरफ देखा। इधर आओ, वो बोला और उसे अपने पास बुलाया। हिया के हाथ पाँव फूलने लगे। मैं? वो बेवकूफ़ाना सवाल कर गई। नहीं, तुम्हारे पीछे एक मखलूक खड़ी है, उसे बुलाया है, सदाम ने आजिज़ होकर कहा। हिया शर्मिंदा सी होती उसके नज़दीक चली गई। सदाम ने उसका हाथ थाम लिया। हमारी शादी हुई है। हाँ, मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी शादी तुमसे हो, मगर किस्मत शायद ऐसा चाहती थी।
जो आज तुम मेरी बीवी बन गई हो, मैंने तुम्हें पूरी रजामंदी से कबूल किया, अपने अक्ल शऊर के साथ। अब तुमसे अलहदगी का सवाल भी पैदा नहीं होता। तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है, किसी के कहने या रोकने से मुझसे गाफिल होने की ज़रूरत नहीं। उसने नरमी से हिया के गाल पर हाथ रखा। क्या? वो भीगे लहजे में कुछ पूछना चाह रही थी। सदाम ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। हाँ, उसने उस छोटी सी प्यारी सी लड़की को अपने रवैये से काफ़ी तकलीफ दी। क्या आपको मुझ में, क्या आपको मुझसे? वो कह ना पाई। अगर ना होता तो शादी कभी ना करता। वो उसकी पेशानी से पेशानी टकराता बोला। हिया की आंखें फैल गई। झूठ! वो उसे दूर धकेल कर बोली। सदाम अपनी मुस्कुराहट दबा गया। ना मानो मैं क्या कर सकता हूँ? हुशान ने अचका कर बोला। मुझे यकीन दिलाएं। वो बेसाख्ता उठने वाली खुशी को दबाती बोली। इधर आओ, अच्छे से फिर यकीन दिलाता हूँ। यकीनन सुबह तक तुम खुद इकरार करने लगोगी। वो मायनी खेजी से बोला। हया का चेहरा सुर्ख हो गया। फजूल बातें ना करें, जाइए अपने घर। वो ज़रा घबरा कर बोली। सदाम खामोशी से उसे देखता रहा। न जाने क्यों लबों में आने वाली मुस्कुराहट को रोक नहीं सका। अजीब सा सुकून था जो शायद पहले कभी नहीं मिला था। उसने उसका हाथ थाम लिया। आई एम सॉरी, वो बोला। हया कुछ उलझ कर देखने लगी। मतलब? वो बोली। मतलब मैं। वो रुक गया। कुछ नहीं, फिर कभी अच्छे से समझाऊंगा, उसने प्यार से कहा और उठ गया। हया उसे देखने लगी कि वो वाकई जा रहा था। उसकी कमीज़ इतनी ही देर में पसीने से गीली हो चुकी थी। वो थका हुआ था, उसे आराम की ज़रूरत थी। वो मुस्कुराकर उठ गई। उसे कुछ देर पहले तक उसे यकीन नहीं था सदाम उससे इतनी नरमी से बात करेगा या ऐसा कुछ कहेगा। वो तो उसकी बेरुखी और अपने हिजर की मुद्दत गिन रही थी, मगर यहाँ तो बाजी ही पड़ गई थी। वो मुस्कुरा रही थी। डर खौफ कुछ नहीं था, वो खुश थी। सुबह होने से पहले तुम आ सकती हो या मुझे आना पड़ेगा? वो दरवाजे में रुक कर मुड़ा। नज़रों में उसके लिए ख़ास बात थी जिस पर हया अपनी धड़कनों को बचा ना सकी। सुबह होने के बाद आ जाऊंगी, उसने आहिस्तगी से कहा। सदाम मुस्कुरा दिया। मैं इंतज़ार करूंगा, उसने कहा और वहाँ से चला गया। हया उसे जाते हुए देख रही थी और जब वो चला गया तब वो भी दरवाज़ा बंद कर गई। मगर दिल में जो आज खुशी थी उसका शायद कोई अंदाज़ा न लगा पाता। वो बेपनाह खुश थी। तभी शुक्राने के 2 नफल अदा करने के लिए जैसे ही नियत बांधी, उसे ऐना का ख्याल भी आ गया और एक बार फिर अफसुर्दगी से छा गई। उसने सोचा कि वो सदाम को ये सब बता दे। न जाने ऐना किस मुश्किल में होगी। आलिया ने उसे पूरे दिन कुछ खाने के लिए नहीं दिया था। जार लौटकर अब तक नहीं आया था और दूसरी तरफ अंशा आलिया के तानों से तंग आ गए थे। तुम्हारी बेटी दूध पीती बच्ची नहीं थी। अगर जार ने ज़बरदस्ती की थी तो वो बता देती। तुम्हारी बेटी से उसकी जान छुड़ा देता। अंश अब की बार भड़क कर बोले। यहाँ भी अपने बेटे की हिमायत कर रहे हैं। मेरी बेटी थी मासूम, उससे क्या पता इन सब बातों का। जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए उसने ऐसा किया है। बुलाइए उसे और तलाक दिलवाइए मेरी बेटी को। वो फिर से बोली। इसमें कोई मजायका भी नहीं है। अगर शादी हो गई है तो अंश, आलिया चीखी, मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करूँगी और आइंदा ऐसी बातें मत करना। ऐना मेरी बेटी है और उसकी ज़िंदगी का हर फैसला मैं खुद करने का हक रखती हूँ। वो चिल्लाई और अंश ने हार मान ली। ठीक है, आने दो, उसे करता हूँ बात। बात नहीं करनी, मुझे तलाक लेनी है अपनी बेटी के लिए उससे। वो ज़िद करने लगी। ठीक है, अंश ने जब से कहा और नाश्ता करने के लिए बाहर आ गया। ज़ार अब भी घर नहीं लौटा। ज़ार साहब लौटे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मगर उन्हें मत बताना आके मुझे बताया तुमने, वो मुलाजिम से बोले। जी साहब, मुलाजिम ने कहा और अंश अफीन के पास आ गए जिसको सकीना नाश्ता करा रही थी। कैसी तबीयत है? अंश ने सवाल किया। ज़ार आ गया। अफीन को ज़ार की फ़िक्र थी। अंश ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम जानती हो वो अपनी गलती को भी कभी गलती नहीं मानेगा। अंश ज़रा गुस्से में बोले। आप मेरे बेटे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे अंश, अफीन ने मजबूत लहजे में कहते उसकी तरफ देखा। अंश को लगा गोया वो फंस गए। वहाँ ऐना के लिए आलिया लड़ने को तैयार थी और ज़ार के लिए यहाँ अफीन भी बोल उठी थी। अंश बिना कुछ कहे उनके पास से भी निकल कर ऑफिस चले गए, जबकि सकीना ने अफीन को बताया कि आलिया ने कल सुबह से ऐना को कुछ खाने को नहीं दिया और ना ही कुछ पीने को। अफीन हैरानगी से सकीना को देखने लगी। बेटी है वो उसकी, ऐसा क्यों करेगी वो उसके साथ? अरे बाजी, आप तो बहुत ही भोली हैं। इतना मारा है उसने ऐना को, इतना मारा है, ऐसे पागलों की तरह मार रही थी उसके मुंह पर। फिर खैर से बच्ची भी बहुत ही प्यारी है। वैसे बाजी, आपको नहीं लगता अपने ज़ार साहब के साथ खूब जचेगी? सकीना बोली तो अफीन ने खामोशी से उसकी तरफ देखा।
माफ़ी चाहती हूँ, वो जल्दी से बोली। तुम उसे खाना दे आओ। अफीन एक नरम दिल की खातून थी। तभी सकीना से बोली, मैं नहीं बाजी, वो पागल औरत मुझे भी मारने लग जाएगी। मैं तो बिल्कुल नहीं जी। बस अल्लाह उस बच्ची को सब्र दे जी, उसने सर दा भरते हुए कहा। ऐसा करो, तुम नाश्ता बनाओ उसके लिए, मैं खुद दूंगी। अफीन ने कहा। भाजी, सकीना ने हैरानगी का इजहार किया। जाओ, तुम्हें मैं कह रही हूँ। भाजी, फिर भी घर में कोई मर्द नहीं है और उस औरत से मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं। भाजी, और फिर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं। सकीना, ज़्यादा मत बोलें, वो भूखी है। अफीन ने ज़रा नाराज़गी से कहा। तभी सकीना मुंह बनाती उठ गई। उसने ऐना के लिए 20 मिनट में नाश्ता तैयार किया। बाहर कोई नहीं था और थोड़ी देर बाद वो अफीन के पास आई और उसे नाश्ता के तैयार होने का बता दिया। अफीन गहरा सांस भरती उठी और सकीना ने ट्रे थामी हुई थी। वो सकीना के साथ ऐना के कमरे के आगे आ गई। उसने ताला खोलना चाहा मगर वो लॉक था। जाओ, कैबिनेट से ले आओ चाबी, अफीन ने कहा, जबकि उसी वक्त आलिया भी कमरे से बाहर निकली। रुक जाओ, क्यों आई हो तुम यहाँ? आलिया ने बुलंद आवाज़ में कहा। वो भूखी है, जो हो चुका है उसे सुलझाने की कोशिश करो। इस तरह उसे सज़ा देने की क्या ज़रूरत है? और बीबी, तुम अपने आवारा बेटे को नहीं संभाल सकती। मैं अपनी बेटी को जैसे मर्जी संभालूं, ये मेरा मसला है। बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? और इतनी हमदर्द ना बनो। कितनी तेज़ और चालाक हो तुम और तुम्हारा बेटा, जानती हूँ मैं। ऊपर से चोर भी। आलिया खरी खरी सुना गई। अफीन ने सकीना की जानिब देखा। जाओ अब यहाँ से, मुंह उठाकर क्यों खड़ी हो? आलिया बदतमीज़ी से बोली। तो अफीन कुछ कह न सकी। वो वाकई उसकी बेटी थी, फिलहाल उसके बेटे की बीवी नहीं थी। अगर ज़ार आ जाता तो कम अज़ कम उस बच्ची पर से यह अजाब वो हटवा पाती। वो बेचैनी से दुआ करने लगी थी ज़ार के लौटने की, जबकि आलिया फिर से कमरे में चली गई और अंदर से फिर से रोने और चीखने की आवाज़ आने लगी। कुछ ही देर में नताशा भी कमरे से निकली। वो वहाँ से वापस जा रही थी। सकीना, क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? अफीन ने उसकी तरफ देखा। भाजी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगी, लेट जाइए। यह अजीब सा मंजर मुझसे नहीं देखा जा रहा। क्या ये औरत इतनी सख्त है, अपनी बेटी को नहीं छोड़ रही? अफीन बोली तो सकीना ने उसको सारी कहानी बतानी शुरू कर दी। जी, ये तो पागल औरत है, हमें तो समझ नहीं आता सूरत के अलावा इसके पास है ही क्या। वो बुड़बुड़ाने लगी और अफीन लेट गई। ठीक है, तुम ये दरवाज़ा बंद करो, मुझसे ये शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा, अफ़ी ने कहा। तो सकीना ने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। शाम से रात ढल आई थी। घर का माहौल वैसा ही था। न ज़ार लौटा और ना ऐना की सज़ा कम हुई थी। सुबह है आ गई थी। उसने सदाम को नाश्ता दिया और वो खुशगवार माहौल में नाश्ता करके ऑफिस चला गया था और है अपने घर चली गई थी, अपनी माँ की वजह से, जो कि बीमार थी। जैसे शाम हुई तो उसने सोचा कि सदाम ने जल्द लौटने का कहा था। तभी वो अम्मी को कहकर उसके लिए खाना बनाने चली गई और जब वो घर पर आई तो सजी सवरी नताशा इधर से उधर फिर रही थी। पहले पहल तो उसे यकीन ही नहीं आया था ऐना और ज़ार के निकाह का सुनकर। फिर जब आ गया तो उसे खुद पर बेहद गुस्सा आया कि ज़ार के ज़ाहिरी हुस्न पर मर मिटकर उसने अपने शौहर को क्यों इग्नोर कर दिया। और वहाँ कुछ लम्हे गुजार कर और ऐना का हाल देखकर जब उसे अपनी दाल गलती महसूस नहीं हुई तो वो दोबारा सदाम के पास लौट आई। उसने हया को देखा। तुम क्यों आई हो? नताशा ने हया से पूछा। आप आ गई? हया मामूली सा मुस्कुराई। हाँ, तो ये मेरा घर है, मुझे आना नहीं था, नताशा गुस्से से बोली। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, उसने कहा और किचन में जाने लगी। रुको, कहाँ जा रही हो? नताशा ने उसे टोका कि वो इतनी आराम से कहाँ जा रही थी। खाना बनाने, हया ने कहा। मैंने तुम्हें बावर्ची तो नहीं रखा? नताशा खुलकर हंसी। हया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अगर बीवी अपने शौहर के लिए खाना बना रही है तो वो बावर्ची नहीं है, वो मोहब्बत में बनाती है। हया ने जता कर कहा कि वो सदाम की बीवी है और उसके घर में कहीं भी आने जाने का मुकम्मल हक रखती है। आह, बीवी! खैर, ये एक दिन में मोहब्बत भी हो गई। अजीब है भाई, तुम्हारी कोई लड़कियां बस खूबसूरत मर्द की चंद लम्हों की कुर्बत को मोहब्बत समझने लगती हैं। मगर बीबी, मोहब्बत सदाम मुझसे ही करता है, उसने कहा। हिया को उससे बात करना फजूल ही लगा। तभी वो वहाँ से किचन में चली गई। मैंने खाना बना लिया है, नताशा ने कहा। अपने शौहर के लिए, वो बोली। हिया को गुस्सा आने लगा। पहले तो उस औरत को अपना शौहर याद नहीं था जब ज़बरदस्ती शौहर की शादी कराई थी। मैं जानती हूँ वो आपके भी शौहर हैं, हिया ने ज़ब्त से कहा। नहीं, पहली बीवी के मुकम्मल इख्तियारात होते हैं और पहली मोहब्बत मर्द भूलता नहीं है। तो आज हम दोनों को अकेला छोड़ दो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने तुम दोनों को अकेला छोड़ा था।
और अब यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, उसने कहा और साथ ही हेया का हाथ पकड़कर उसे बाहर धकेल दिया। हेया को अपनी इंसल्ट बहुत गुस्सा आया। वो बिना कुछ कहे गुस्से में वहाँ से चली गई। नताशा ने हाथ जोड़े। तुम्हें तो मैं जिस काम के लिए लाई हूँ वो काम पूरा होने के बाद बाइकआउट करा दूंगी इस घर से। आह, मेरा घर और सदाम। आई एम सॉरी सदाम, मैंने तुम्हें इग्नोर किया ज़ार के लिए। वो गहरी सांस भरती सोचने लगी और मुस्कुरा दी। सदाम हैरान रह जाएगा उसको देखकर। दूसरी तरफ यह भीगी भीगी आंखें अपनी माँ से छुपाती फिर रही थी। नताशा सदाम का इंतज़ार कर रही थी, जो तकरीबन 9 बजे के करीब लौटा था। वो फूल लाया था, मगर सामने नताशा को देखकर एकदम रुक गया। वो कहाँ थी? 2 दिन से उसे बताना ज़रूरी नहीं समझा था। नताशा ही उसके गले का हार बन गई। मेरे लिए लाए हो? वो चाहत से बोली, बिल्कुल पहले की तरह, जबकि सदाम के लिए ये सब अजीब लग रहा था। नहीं, उसने रूखे लहजे में कहा। नताशा का मुंह से उतर गया। हेया कहाँ है? ये एकदम में कुछ ज़्यादा क्लोज नहीं हो गया तुम उसके साथ? नताशा बोली तो सदाम ने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा है हेया कहाँ है। क्या मसला है सदाम? मैं तुम्हारी और अपनी बात कर रही हूँ और तुम हेया हेया बोले जा रहे हो। नताशा भड़की। सदाम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो इस सब की जिम्मेदार खुद थी। उसने जो कुछ भी किया था खुद से किया था। अब जो हो गया था फिर उससे नज़रें चुराने का सोचने की उसे ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि सदाम अब पीछे न हटता। वो नताशा के साथ जुड़े रिश्ते को अब अहमियत नहीं देता था, क्योंकि उसने बहुत कंप्रोमाइज़ किया और इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, मगर अंजाम उसके सामने था। तभी उसने तवज्जो दिए बिना नताशा को दूर धकेला और पीछे पलटकर हेया के पास चला गया। सदाम! नताशा वहीं से चीखी और उसे अपनी संगीन गलती का अंदाज़ा हो गया था। सदाम हेया के पास आया। वो आंटी के पास बैठी थी। सदाम को देखा। सदाम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ फूल किए, जिन्हें उसने ज़रा खफकी से थाम लिए। आंटी भी मुस्कुरा दी। ये लड़की तो पागल हो गई है बेटा, इसे ज़रा तुम ही समझाओ, नताशा की बातों को दिल से लगाए बैठी है, आंटी ने कहा तो सदाम भी उसके साथ बैठ गया। हेया ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा कि उसे उसकी माँ का ख्याल क्यों नहीं आया, मगर सर झुकाकर सुर्ख फूलों को देखने लगी। क्या कहा है नताशा ने? सदाम ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा था। हेया को लगा सारे शिकवे धुल गए हों। उसने उसकी जानिब देखा और निगाह जल्दी से फेर गई। कुछ नहीं, आप पानी लेंगे, खाना खाएंगे? उसने खड़े होते हुए पूछा। ऑफ कोर्स, और कहाँ जाकर पीऊँ और खाऊंगा? उसने शाने अचकाए। नताशा ने आपके लिए खाना बनाया हुआ है, हेया ने उसे याद दिलाया। और मैं किसके पास हूँ इस वक्त? सदाम ने गहरी नज़रों से उसे देखा। उसकी माँ भी जैसे खुश हो गई थी। ऐसा है, तुम सदाम को खाना दो, बस मेरी व्हील चेयर अंदर कर दो, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। वो बोली तो हेया ने सर हिलाया। तुम खाना निकालो, मैं आंटी को अंदर ले जाता हूँ, सदाम ने उठते हुए कहा और हेया ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और वो खाना निकालने चली गई। फूलों की खुशबू चार सौ बिखर गई थी। उसने खाना निकाला, पीछे से सदाम आ गया और अचानक ही उसने हेया की कमर में हाथ डाल लिया। हेया का हाथ रुक गया। उसने हेया के शोल्डर अपनी थोड़ी पर रख लिए। गुस्सा क्यों हो? वो पूछने लगा। हेया से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सदाम के रवैये को समझ नहीं पा रही थी। वो जल्दी से मुड़ी। सदाम का हसार अब भी उसके इर्द गिर्द था। सदाम, एक बात पूछूं? वो बोली। नज़र उसकी शर्ट के बटन पर थी। हाँ पूछो, मगर मेरी तरफ देखकर, सदाम ने कहा तो हेया उसकी आंखों में देखने लगी। कि क्या ये सब आप मेरे साथ दिल से कर रहे हैं या कोई और वजह है? मतलब नताशा ने हमारी शादी बच्चे के लिए? सदाम ने उसे रोक दिया। हेया की भीगी आंखों की जानिब देखने लगा। हेया, मैं खुद नहीं जानता मैं तुमसे शादी पर इतना खुश क्यों हूँ। हालांकि ये शादी मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे डर था मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। वो रुक गया। हेया ने उसकी तरफ देखा। हाँ, मुझे डर था, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ और इतना चाहूँगा फिर तुम सब भूल जाओगी। और उसके चेहरे पर से पसीने में चिपकी बालों की चंद लिट्टी हटाकर बोला और दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। हेया मुस्कुरा दी। अब खुश हो? वो बोला। हेया ने सर हिला दिया। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। हेया ने ज़रा घूर कर उसकी तरफ देखा तो सदाम मुस्कुरा दिया। तो बताओ अपने दिमाग की बातें। वो दोबारा उसकी का रुख मोड़कर थोड़ी उसके शाने पर रख गया। वो आप मोहब्बत तो नताशा से भी करते हैं? करता था, उसने यूं ही संजीदगी से जवाब दिया। क्यों? अब क्यों नहीं? हेया को हैरानगी हुई। उसने अपने रास्ते मुझसे खुद अलग किए, तो मैंने भी उसे खुद से अलग कर दिया। फिर मुझे इल्म नहीं था मैं तुमसे मिल जाऊंगा। कैसे अलग किए उसने आपसे रास्ते?
حیا جاننا چاہتی تھی وہ زہر کو پسند کرنے لگی تھی اس کے پیسے کی وجہ سے، اور میری محبت اور میری مالیت اسے بہت چھوٹی لگنے لگی تھی۔ صدام بولا تو حیا شاکڈ رہ گئی۔ کیا؟ ہاں مگر یہ ہمارا موضوع نہیں۔ اوکے تم کھانا نکالو، مجھے بھوک لگی ہے یار، وہ بولا۔ حیا بے حد خوش تھی، اب اس کے دل سے ہر بات نکل گئی تھی۔ وہ اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ صبر کا پھل اسے بہت خوب ملا تھا کہ جب صدام اس کا ہوا جیسے وہ چاہتی تھی۔ اس نے اور صدام نے اکٹھے کھانا کھایا تھا اور وہ باتیں بھی کرتے رہے تھے۔ حیا اسے بات بات پر خفا ہو رہی تھی، پچھلی باتوں کو لے کر کہ کہاں اس نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا تھا اور یہاں کیسے اسے اگنور کیا تھا، اور یہاں اس نے اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا، جبکہ صدام بار بار اس کی ناراضگی کم کر رہا تھا اسے محبت کا اظہار کر کے، اور جب وہ اسے دیکھتا تو وہ شرما سی جاتی مگر خوشی سے جو چہرے پر چمک تھی۔ صدام اس چمک سے مطمئن سا تھا، زندگی میں سکون آ گیا تھا ان دونوں کے بقول، جبکہ قسمت مسکرا دی تھی۔ اور یہ تھی اس کی 10ویں ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی، اور میرا گلا بھی تھوڑا بیٹھ گیا ہے پڑھتے ہوئے۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔